اور حضرت علی کی اتباع سنت کے حوالے سے بھی 2 عدد جمعے آپ کے سامنے ان گزارشات پہ رکھے تھے کہ حضرت علی نبی محترم کی اتباع کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کی سیرت کے اندر ایک واقعہ صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے، آج اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اور آج آپ نے اپنے دلوں کو اور اپنے ذہان کو بغیر تعصب کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ امت کا، صحابہ کا، محدثین کا وحی کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ وحی کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے اور یہ بات عام فہم ہے، ہم یہ بات سنتے آئے ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام، وحی کے دونوں مجموعوں کا نام اسلام۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام۔ شریعت کس کا نام ہے؟ قرآن و حدیث کا نام۔ یہ بات ہم سنتے آئے ہیں، لیکن ایک بات جس کے اندر کچھ اشکالات ہیں، آج آپ نے وہ بھی رفع کرنی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور آ کے سوال کیا، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے، حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ کیا آپ کے پاس وحی الہی میں سے کوئی ایسی شے بھی موجود ہے جو اس قرآن پاک میں نہیں ہے؟ سوال کرنے والے نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کے اوپر غور کیجیے، کیا قرآن کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہے؟ یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وحی الہی کی اس قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی نسخہ موجود ہے؟ حضرت علی نے قسم کھا کے کہا، جی ہاں، میرے پاس اس قرآن کے علاوہ ایک صحیفہ بھی موجود ہے۔ اس صحیفے کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک طبقہ فکر نے بہت سی باتیں پھر گاڑ لی، یہ روایت صحیح ہے، اور حضرت علی اس صحیفے کے بارے میں جو کہیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا جی قرآن کے علاوہ بھی ایک، قرآن کی مثل بھی ایک، یعنی ایک ہمارے طبقے نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اصل قرآن ہی علی کے پاس تھا، یہ والا قرآن نعوذ باللہ صلی نہیں ہے۔ ایک تو یہ عقیدہ اپنا لیا، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے انکار حدیث کا فلسفہ اختیار کیا، جو انکار حدیث کرتا ہے ان کے نزدیک سند اور روایات کی اہمیت ہی کیا ہے؟ وہ تو ایسا گمراہ ہو جاتا ہے کہ تاریخ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اب حضرت علی سے ابو جحیفہ پوچھتے ہیں، جی اس صحیفے میں کیا ہے؟ جائیے حدیث کی ساری کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن حضرت علی بیان کرتے ہیں اس صحیفے میں وہی کچھ ہے، اس صحیفے میں وہی کچھ ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور لکھ لیا۔ کیا لکھا؟ یہ بھی وضاحت موجود ہے۔ اس میں جی دیت کے مسائل ہیں، اس میں مسلمانوں قیدیوں کے احکامات ہیں، اس میں یہ احکامات ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم یہ قرآن ہے اور دوسری قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ بات صرف حضرت علی کے قول سے ظاہر نہیں ہوتی، قرآن پاک سے ثابت ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم کی زبان سے کوئی بات ادا نہیں ہوتی مگر وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ، یہ باطل، یہ دوغلا پراپوگنڈا حدیث بڑے عرصے کے بعد لکھی گئی، یہ جھوٹی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عبداللہ ابن عمر بن عاص موجودگی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں، نبی کریم خوش ہوتے ہیں، نہ لکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم نے کہا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے منع کر دیا، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم، خوشی اور ناراضگی کی بات سائیڈ پہ رکھو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، لکھا کرو، لکھا کرو۔
और लोगों ये गंदा फलसफा, ये एक अलग तवील मौजू है। लेकिन हम्माम बिन मुनब्बे, हमीदुल्लाह, डॉक्टर हमीदुल्लाह को पीएचडी की डिग्री मिली। हम्माम बिन मुनब्बे कौन है पता? हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द। नबी करीम तक इनकी कोई सनद कितनी है? सिर्फ दरमियान में अबू हुरैरा हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस सहीफे का जिक्र अहादीस में मिलता। हजरत अबू हुरैरा की बहुत सी रिवायतें बुखारी, मोता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद में मौजूद थी। हम्माम बिन मुनब्बे का सहीफा हदीस का लिखा हुआ डॉक्टर हमीदुल्लाह ने काफिरों के अजायब घरों में से, मखतूतात में से तलाश किया जो उनके अपने हाथ का लिखा हुआ। और जब बुखारी, मोता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद से उन हदीसों का मुआवजा किया गया, एक जेर जबर का भी फर्क नहीं था। क्या आप समझते हैं अल्लाह दीन को नादिल करे और दीन महफूज ना करे? अल्लाह ने दीन को नादिल किया और उसको सेफ नहीं किया। कुरान पाक को सिर्फ हरफों में महफूज समझने वाले और मफहूम के एतबार से इसका इनकार करने वाले लोग आज मुआशरे में आम है। क्या मतलब मफहूम का इनकार? मफहूम का इनकार यह है 700 से ज्यादा मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब हमीद में कहा किसकी पैरवी करनी है? रसूलुल्लाह की पैरवी करनी। किसकी इताअत करनी है? रसूलुल्लाह की इताअत करनी है। रसूल तुम्हें जो चीज ले थाम लो, जिससे रोके रुक जाओ। उनका उठना बैठना निशिस्त बरहाज तुम्हारे लिए नमूना है। हत्ता के कुरान में यह आयत भी नाज़िल होगी, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना। 700 जगह पे अल्लाह एक बात का हुक्म दे रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए सैंपल है, नमूना है। आइए आम फहम बात समझिए। आप किसी दर्दी को ऑर्डर दें, उसके पास जाएं, उसको कहें मेरे सैंपल के मुताबिक मेरा सूट सी दो। अगले दिन फिर फोन करें, एक दिन में 5 दफा कहें, अगले दिन फिर कहें, अगले दिन फिर कहें। 700 मर्तबा आप दर्दी को कहें मेरे सैंपल के मुताबिक सूट सी दो, और उसको आप सैंपल ही नहीं दे के आए हो, वो कहेगा कितना बेवकूफ आदमी है। सैंपल देता नहीं, जिसके मुताबिक सीने और बार बार कही जाता है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं। अल्लाह ने 700 मर्तबा का नबी की पैरवी करो, नबी की जिंदगी नमूना है, नबी की जिंदगी सैंपल है। सैंपल ही महफूज नहीं, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। और आज आपने ये बात भी समझ ली, ये बात तो लोगों को पता है। हमारे यहां दीन कुरान और सुन्नत का नाम, शरीयत कुरान और सुन्नत का नाम, इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम। यह भी बात याद रखिए कि जब मुजर्रद किताबुल्लाह का लफ्ज आए, किताबुल्लाह का लफ्ज सियाको सबाक के बगैर जब भी तन्हा आए, इससे मुराद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, ताबईन ने, मुहद्दिसीन ने कलामुल्लाह भी लिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ली है। बाद लोगों को आज ये दावा बड़ा चुभता है जी, इन्होंने किताबुल्लाह को भी कुरान और हदीस के मजमूए का नाम करार दिया। जी हां, अगर अकेला किताबुल्लाह बगैर सियाक व सबाक के जाहिर होगा, कभी कुरान और हदीस के साथ जाहिर होगा। अगर सियाक व सबाक होगा तो कभी कुरान के लिए भी होगा, और अगर सियाक व सबाक होगा सिर्फ हदीस के लिए भी होगा। आइए समझिए मिसालों से इस बात की हमारे पास क्या दलील है। दलील कुरान में मौजूद है। एक दलील कुरान से आपको देता हूं, इन्ना इद्दत अश-शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, किसमें? फी किताबिल्लाह। उठाइए कुरान, दुनिया का कौन सा बंदा इस आयत को रिजेक्ट करके दिखाए। अल्लाह के यहां महीनों की गिनती 12 है, किसमें? फी किताबिल्लाह। पूरा कुरान उठाइए, एक महीने के अलावा, शाहरु रमजान के अलावा 11 महीनों का तज़किरा, 11 महीनों के नाम उठाइए। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान है तो उठाइए कुरान पाक, बाकी 11 महीने भी पैदा करके दिखाइए। इन्ना इद्दत अश-शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। इससे क्या मुराद है? अल्लाह की किताब। जी हां, अगर आपका और मेरा कीता ये हो जाएगा किताबुल्लाह से मुराद कुरान भी और हदीस भी है, आपको 12 के 12 महीने मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अकेले किताबुल्लाह को कुरान समझने से नहीं मिलेंगे। और फिर अल्लाह ने इसी पर बस किया, मिनहा अरबातुल हुरुम,
मिनहा अरबातुन हुरुम, 4 ऐसे हैं जो बड़ी अजमत वाले हैं, इनमें जुल्म नहीं करना। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है एक बंदा घर में गुनाह करता है, नाउज़ बिल्लाह, वो भी गुनाह ही है, लेकिन एक बदबख्त मस्जिद में आके वही गुनाह करे, गुनाह की शिद्दत में इजाफा होगा ना। एक बैतुल्लाह में जाके वही गुनाह करे, गुनाह की शिद्दत में इजाफा हो गया। अल्लाह कह रहा है 4 महीने मिनहा अरबातुन हुरुम, इनमें से 4 महीने इतने अजमत वाले हैं, इतनी हुर्मत वाले हैं, इनमें जुल्म करना बाकी महीनों में जुल्म करने से ज्यादा शदीद है। अब आप बतलाइए कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जिसके अंदर इन 4 महीनों का तज़किरा? अल्लाह तो कह रहा है इनमें से जुल्म नहीं करना, और अल्लाह जुल्म से बचने की इज्तनाब की दावत दे रहा है। आपको और मेरे लिए जरूरी है हमें पता हो वो कौन से 4 महीने। अल्लाह कह रहा है इन 4 महीनों में जुल्म मत करो, गुनाहों को कम कर दो। ये ट्रेनिंग होती है मुसलमानों की, जैसे रमजान साल बाद आता है ना, इस तरह अल्लाह ताला ने ये 4 हुर्मत के महीने इसलिए बनाए हैं, मुसलमान इनमें ट्रेनिंग करें, अपना तज़किया नफ्स करें, इसमें अपने आप को कंट्रोल करें, इसमें झगड़ा ना करें, इसमें कर्जदार को मोहलत दे दें, इसमें नरमी पैदा करें, इसमें आसानी, ताकि इंसान का ट्रेनिंग हो। इन 4 महीनों का पता होना चाहिए मुसलमानों को, क्या नहीं? बताइए कुरान पाक में वो कहां है? जी हां, अगर किताबुल्लाह को हदीस का हिस्सा भी, हदीस को भी किताबुल्लाह का हिस्सा मानेंगे तो आपको वो 4 महीने भी मिल जाएंगे। लेकिन कोई मुनकर हदीस आए, उससे पूछे ना, ये सवाल आज करता है आपने, कहेगा वो जो 11 महीने हैं ना वो तारीख से मिल जाते हैं, वो जो 4 महीने हैं ना वो तारीख से मिल जाते हैं। फिर बात सख्त हो जाती है। अल्लाह की लानत ऐसे अकीदे पर कि तू तारीख पे तो ईमान लाया और तूने हदीस को छोड़ दिया।